So now we are going to start Rajya Sabha. It is also known as Upper House, and it represents the Federation of States of the Indian Union. It means कि राज्य सभा जो है वो हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. नाउ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्य सभा is not more than 250 members. So, and the members fall into two categories. One is nominated and second is elected. So now we will discuss first nominated members. So they are nominated by the president and they having some special knowledge and practical experience of certain fields like literature, science, art and social services. So there are the total 12 members which are nominated by president. अब ये जो लोग हैं, अब इनमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो सचिन तेंदुलकर है, हेमा मालिनी है. सो दे आर बिलोंग्स टू अ डिफरेंट फील्ड बट दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द राज्य सभा. Elected members, they are the 238 members which are elected by the state in the union. अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो समझने की ज़रूरत है, जो members हैं they are not equal in the numbers. It's depend upon the population of the state. अगर किसी states की population बहुत ज़्यादा है तो उतना ही members बढ़ेंगे. ठीक है. So for an example is उत्तर प्रदेश. So the representatives of the Uttar Pradesh in Rajya Sabha are 31 members. Punjab's having 7 members. Goa, Manipur, Meghalaya, Mizoram having 1 member. Union territories की बात करें so they are having 4 members. और for example like दिल्ली से 3 members रिप्रेजेंट वो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा और पुडुचेरी से like 1. So the election procedure is the representative of each states in the Rajya Sabha. They are elected by the elected members of the Legislative Assembly. So it is totally indirect election, and each states in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. इसे अगर मैं शॉर्ट हिंदी में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल कि जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट. हर एक स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय द वोटिंग. The representative of union territories are chosen in such a manner as parliament may prescribe. जैसे ही पार्लियामेंट्री से जो पास होगा उसी हिसाब से यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स जो हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें चूज़ किया जाता है. जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जैसे 3 representatives from the Delhi are elected by the members of legislative assembly. द राज्यसभा में अगर बात करें तो एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स हैं जिनमें से 12 जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. द टर्म सो एज कंपेयर टू द लोकसभा, राज्यसभा हैविंग 1 more year, राज्यसभा हैविंग 6 years and it cannot be dissolved like Lok Sabha. So each member of the Rajya Sabha is elected for a period of 6 years. 1/3 of the total members of the house retire every after 2 years, but they can be re-elected if they desire or if their electors support them. Let's discuss the qualification of the member of the Rajya Sabha. So it's same as Lok Sabha, but a difference is the age criteria. So now just see what are the criteria.
for being the member of the Rajya Sabha. First, the person should be Indian citizen. Second, he should be at least 30 years of age. यहाँ पे 30 साल मांगे चलो, मतलब 30 या उससे ज़्यादा. He should have his name in the electoral rolls in some part of the country, same as Lok Sabha. He should not be insolvent, that is, should not be debt, and should have the ability to meet his finance commitments. He should not hold any office of profit under the government. He should not be proclaimed criminal, and he should not be unsound mind. These qualifications are also same as the in the Lok Sabha. Officer, as in Lok Sabha, the speaker is there. So here the Vice President of India is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha. So he became the presiding officer, and he cannot vote as same in the Lok Sabha until unless it's a tie. So he exercises casting vote during a tie. Now the next is Rajya Sabha elects the deputy chairman from among its members in some case of the absence of the chairman, like vice president. So he perform all functions and duties of the chairman. Discuss the powers and the functions of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. देखा जाए तो जो पार्लियामेंट इट्स कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट, राज्य सभा एंड लोकसभा. लेकिन अगर दो हाउसेस की हम अगर बात करें तो दोनों के पास कॉम्पिटिटिव पावर्स होते हैं, ठीक है. और कुछ चीज़ों में, मतलब कुछ फील्ड्स में और कुछ सेक्टर्स में इन दोनों की जो पावर्स होते हैं, जो फंक्शनिंग होती है, वो टुगेदर होती है. सो इट्स कॉल्ड को पार्टनर इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. सो देखा जाए तो दे enjoy the equal power and status in all these spheres, but in financial matters की अगर हम बात करें तो उसमें लोकसभा को ज़्यादा इम्पोर्टेंसी दी जाती है. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो देखा जाए तो उसमें लोकसभा की पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द राज्यसभा. सो बोथ ऑफ they enjoy equal powers in the impeachment of president, removal of vice president, constitutional amendments बनाने में, removal of judges in Supreme Court and High Court, और presidential ordinance में, और कोई emergency हो गई है उसमें, और suppose somewhere proclamation of the failure of the constitution machinery in a state. तो ऐसे सिचुएशंस में ये लोग पार्लियामेंट्री हाउस में सेशन बिठाते हैं. अगर सपोज़ जिस जो सेशन है उसमें इफ़ दे आर नॉट एग्री, मीन्स सपोज़ वन ऑफ द हाउसेस डिसएग्री और वन ऑफ द हाउसेस एग्री, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तब मेजॉरिटी ऑफ वोट से ही डिसाइड किया जाता है कि किसकी जो पावर है, मतलब किसके फेवर में डिसीज़न लिया जाएगा. लेट अस डिस्कस द लेजिस्लेटिव पावर्स. सो देखा जाए तो सारे बिल्स ही पास होते हैं पार्लियामेंट में, अदर देन मनी बिल, क्योंकि मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही पास किया जाता है. और कोई भी बिल तब तक एज अ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है जब तक कि दोनों ही हाउसेस उस बिल को लेके एग्री नहीं होते हैं. और अगर सपोज़ ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें सपोज़ कोई एक हाउस जो है वो डिसएग्री हो रहा है, तब तो प्रेसिडेंट नोटिस भेज के पार्लियामेंट में जॉइंट मीटिंग की सेशन करवाने के लिए परमिशन दिया जाता है, जिसमें कि जो इशू है वो डिसाइड किया जाए और एज अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स के हिसाब से वोटिंग करवा के देन डिसीजन लिया जाए. वी कैन सी द पार्लियामेंट इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन,
अब पार्लियामेंट में लॉज जो बनते हैं, कानून जो बनते हैं, वो क्या क्या कौन कौन से लिस्ट है उसमें। तो द फर्स्ट इज मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। सो यूनियन मतलब आप समझ लो सेंट्रल पावर, जो कि देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो वो लाइक फॉर एग्जांपल अभी सेंट्रल में हमारे पावर में कौन है, बीजेपी। तो बीजेपी के पास ये पावर है। सो दे आर द 97 सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, जिसमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, ये सब है। द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैटर इन द कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल को दोनों को इक्वली पावर दिया जाता है। सो दे आर द 47 सब्जेक्ट्स। अब इसमें सपोज़ ऐसी कंडीशन भी कभी क्रिएट हो जाती है कि दोनों ही उस बिल को लेके एग्री नहीं होते, मीन्स एक एग्री हो रहा है दूसरा डिसएग्री होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो यूनियन लॉ है, यूनियन की जो बात है, उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज़ रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर मतलब हुआ द मैटर्स विच आर नॉट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो जो मैटर्स इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो उन मैटर्स को डिस्कस किया जाता है फॉर मेकिंग लॉज ऑन दैट मैटर्स। डिस्कस द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। सो स्टेट लिस्ट मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिसमें सिर्फ स्टेट्स के पास पावर हो डिसीजन लेने का। सो उसमें पहला है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम, और ऐसी कंडीशन जहाँ 2/3 मेजॉरिटी से वो सब्जेक्ट पास हो गया है राज्यसभा में, तो उसे भी एज अ नेशनल इम्पोर्टेंस दी जाए। और सपोज़ ऐसी कंडीशन है जहाँ 2 से या 2 से ज़्यादा स्टेट्स ने ये पार्लियामेंट में पिटीशन डाला हो कि ये बिल पास होना चाहिए, तो उसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बना लेती है, लेकिन ये एप्लीकेबल उन्हीं स्टेट्स में होता है जो कि इस चीज़ के लिए सहमति, उस बिल के लिए सहमति देते हैं।